Bismillahirrahmanirrahim. Short question from exercise chapter number 17. जो टॉपिक्स पढ़े थे उसी टॉपिक के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए थे, लेकिन एक दफ़ा फिर देख लेते हैं इनको। क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड और पॉलीमेरिक सॉलिड। इसके अंदर हमें बताना है कि डिस्टिंग्विश करना है, फ़र्क तलाश करना है क्या क्या है, तो अहम बातें बतानी है इसमें। क्रिस्टलाइन सॉलिड, a solid having an ordered arrangement of molecules, जिसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल उसका एक ऑर्डर होता है, एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दिस अरेंजमेंट इज इन ए रेगुलर पैटर्न। दूसरी अहम बात यह है कि ये रेगुलर पैटर्न में होगा थ्रू आउट द क्रिस्टल। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हम कहते हैं कि ऑर्डर्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल मेटल में कॉपर, आयरन, जिंक। आयनिक कंपाउंड में सोडियम क्लोराइड और सेरामिक में जरकून। ये हो गया जी क्रिस्टलाइन सॉलिड। amorphous या glassy solids. Word amorphous means without structure. A solid जिसमें irregular arrangement of molecules की, उसे हम amorphous solid कहते हैं. It means that amorphous solid are more like liquids with the disordered molecular structure. For example, an ordinary glass which is solid at ordinary temperature has no regular arrangement of molecules. Polymeric solid. Partially या poorly crystalline solids, इनको polymeric solid कहते हैं. For example, plastic and synthetic rubber are example of polymeric solids. Plastic and synthetic rubber are the examples of polymeric solids. They consist of long chain of three-dimensional molecules formed by the chemical reaction called polymerization. केमिकल रिएक्शन से बनते हैं और इस रिएक्शन को पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं. ये एज इट इज़ वही वर्डिंग है जो कि हम थ्योरी के अंदर पढ़ के आए हैं. दूसरा सवाल देखें, डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. इसके ऐसा यूनिट बताएं. तो थ्योरी के अंदर पढ़ चुके हैं हम. क्वेश्चन अभी मजीद भी है, लेकिन ये दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं. दूसरा, डिफरेंशिएट बिटवीन टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड शेयर मोड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. ये भी हम पढ़ चुके हैं. थ्योरी के अंदर जैसे पढ़ा हमने एज इट इज़ वहीं से क्वेश्चन उठाएंगे. Define modulus of elasticity. Show that the unit of modulus of elasticity and stress are the same. Also discuss three kinds. As it is theory में जो पढ़ा हमने वहीं से उठाएंगे. Draw stress strain curve. Define the terms elastic limit, yield and ultimate tensile strength. ये भी topic. What is meant by strain energy? ये भी पढ़ चुके हैं, but इसको लिखा गया यहाँ पे. How can it be determined from the force extension graph? When some external force is applied on an object, एक बैरूनी क़ुव्वत एक जिस्म के ऊपर अमल करती है. इसका मतलब ये होगा कि कुछ अमाउंट ऑफ वर्क जो है उसके ऊपर किया गया. Some amount of work is said to be done. This energy supplied, जो एनर्जी आपने दी, is stored, वो स्टोर होगी in the body, जिस्म के अंदर, in the form of potential energy. पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वो उसके अंदर स्टोर होगी. As due to applied force की वजह से distance between molecule of a solid increases and extension is produced. अगर F फोर्स हो जो कि अप्लाई की गई और डेल्टा एक्स एक्सटेंशन हो जो उसमें पैदा की गई, तो फिर एनर्जी स्टोर होगी वर्क डन के बराबर.
Energy work done W is equal to 0 plus F over 2 into delta X, बिकॉज फोर्स 0 से बढ़कर F हुई थी, इसलिए यहाँ एवरेज फोर्स लेंगे, तो ये हाफ F डेल्टा X के बराबर आएगा. This energy can be calculated with the help of area under the curve between force extension graph. उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स है, क्वेश्चन नंबर 6. ये भी टॉपिक पढ़ चुके हैं हम, वहीं से इसमें देखिए. इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये भी टॉपिक से देखना. क्वेश्चन नंबर 8 है, discuss the mechanism of electrical conduction by hole and electrons in a pure semiconductor element. In pure semiconductor, number of holes is equal to number of electrons. When a battery is connected in to a semiconductor, the electric field is established. Due to this electric field, the flow of electron and hole take place. Electrons भी move करेंगे, holes भी move करेंगे. Electron drift करेंगे एक साइड पर, जबकि hole drift करेंगे opposite direction में. This is the reason for conduction of electric current inside the semiconductor. तो total current electron और hole दोनों की वजह से होगा. उसके बाद सुपर कंडक्टर पे नोट है, थ्योरी देखेंगे आप. सुपर कंडक्टर में जो पढ़ा हमने टॉपिक, पैरा, डाया और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये भी थ्योरी के अंदर डिफाइन कर दिए गए. What is meant by hysteresis loss? How it is used in the construction of a transformer? ये लास्ट टॉपिक था हमारा. Area of the hysteresis loop is a measure of energy needed to magnetize and then to demagnetize the material. जो एरिया है हिस्टेरेसिस लूप का, एक्चुअली ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और वो वहीं एसी से ही लेगा जो हम इनपुट दे रहे होते हैं, और जो उसको डीमैग्नेटाइज करती है वो भी वहीं से लेगा, तो ये एनर्जी डिसिपेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस, और इसे हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं. Thus, the magnetic materials for which the area of hysteresis loss is small, dissipation of energy is also small. यही बात की कि अगर एरिया कम होगा तो डिसिपेशन कम होगी. Such materials are suitable for construction of core of transformer या मोटर. तो ऐसे ट्रांसफार्मर या मोटर या कोर बनाने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, ये वो मटेरियल्स हैं. ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है प्रॉब्लम्स. 1.25 centimeter diameter cylinder is subjected to a load of, अब देखिए इसके अंदर लोड है 2500 किलोग्राम. इट मीन्स हमारे पास किलोग्राम है तो ये मास होगा, लेकिन वो लोड कहता है तो इसको आप जी से मल्टीप्लाई करेंगे. 1.25 सेंटीमीटर डायमीटर हमारे पास है 1.25 सेंटीमीटर. मालूम हमने क्या करना है, स्ट्रेस, और स्ट्रेस भी मालूम करना है मेगा पास्कल. अभी क्वेश्चन पूछा गया मेगा, आंसर पूछा गया मेगा पास्कल में, तो जवाब भी मेगा पास्कल में ही देंगे. तो अब देखें यहाँ पे डी डायमीटर जो गिवन है वो है 1.25 सेंटीमीटर. ये हो जाएगा 100 से डिवाइड करेंगे 0.0125 मीटर. अब रेडियस चाहिए हमें, बिकॉज एरिया निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए डी को 2 पे डिवाइड करेंगे, 0.0062 मीटर आ जाएगा. मास हमें गिवन है 2500 kg. स्ट्रेस सिग्मा से डिनोट करते हैं, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज एफ ओवर ए. सो सिग्मा इज इक्वल टू एफ की जगह पे आप पुट करेंगे एम जी ओवर पाई आर स्क्वायर. अब एम की वैल्यू है 2500, जी 9.8, पाई 3.14 और 0.0062 का स्क्वायर. सो सिग्मा इज इक्वल टू, आफ्टर कैलकुलेशन, 200 इंटू 10⁻6 पास्कल. तो ये आता है हमारे पास 10⁶ को मेगा लिखेंगे तो ये मेगा पास्कल आ जाएगा. ये पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. अब इसको अच्छे तरीके से लिख के आपने इसे सॉल्व करना है और कैलकुलेटर से आंसर मैच करना. क्वेश्चन नंबर 2. 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर
is subjected to a stretching force and its length increases by 20 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है 20 सेंटीमीटर। मालूम करना है टेंसाइल स्ट्रेन कितना है। परसेंट इलोंगेशन भी मालूम करनी है। अभी चीज़ें अंडरलाइन की तो इसी तरह से न्यूमेरिक किया। तो ये देखें कि डेटा क्या गिवन है, हमने निकालना क्या है, फार्मूला कौन सा लगेगा, तो न्यूमेरिकल इजी हो जाता है। अब लेंथ है 1 मीटर, स्मॉल एल इज इक्वल टू 1 मीटर। डेल्टा एल 20 सेंटीमीटर जो कि लंबाई में इजाफा हो गया, सेंटी 10⁻⁻2 है, तो 20 इंटू 10⁻2 था, ये हो गया 2 इंटू 10⁻1 मीटर। फाइंड करना है टेंसाइल स्ट्रेन। इसको एप्सिलॉन जैसे सिंबल से जाहिर किया जाता है, पढ़ते ई हैं इसको। परसेंटेज इलोंगेशन, टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, यानी डेल्टा एल ओवर एल। डेल्टा एल की वैल्यू 2 इंटू 10⁻1 और जो लेंथ ओरिजिनल थी वो 1 मीटर थी, तो आंसर आएगा 0.2। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए आप देख सकते हैं इसमें यूनिट नहीं। परसेंटेज इलोंगेशन निकालनी है तो उसमें चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ इनटू 100%। तो इसमें देखिए 0.2 ओवर 1 इंटू 100, क्योंकि ये हम निकाल चुके हैं 0.2 डेल्टा एल ओवर एल, इसको 100 और परसेंट से मल्टीप्लाई करें तो ये 20% आंसर आता है। सो इट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में एक वायर है 2.5 मीटर लॉन्ग, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, तो हम कैपिटल ए लिखेंगे। उसके बाद स्ट्रेच किया गया उसको 1.5 mm, इट मीन्स इसमें जो डेल्टा एल है वो 1.5 mm। फोर्स उसके ऊपर लग रही है 100 न्यूटन। इन द इलास्टिक रीजन कैलकुलेट द स्ट्रेन। अब आप देखें इसमें नंबर 1 स्ट्रेन पूछा हुआ है, नंबर 2 यंग मॉडुलस पूछा हुआ है, नंबर 3 एनर्जी स्टोर पूछी हुई है जो वायर के अंदर स्टोर हो रही है। यानी एक इस सवाल में हमारे साथ 3 अलग अलग चीज़ें पूछी गई। हम देखेंगे जो इसकी लेंथ है 2.5 मीटर का, एरिया 10⁻5 मीटर स्क्वायर, जो इजाफा हुआ लंबाई में 1.5 मिलीमीटर, तो मिली की जगह पे 10 की ताकत -3 लिखेंगे। फोर्स है हमारे पास 100 न्यूटन। स्ट्रेन सबसे पहले ई निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर निकालनी है, यंग मॉडुलस निकालना है। तो पहले आ जाते हैं ई, डेल्टा एल ओवर एल। डेल्टा एल 1.5 मिलीमीटर था और लेंथ थी 2.5, इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 6.0 इंटू 10⁻⁻4। यूनिट नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता। यंग मॉडुलस फार्मूला एफ ओवर ए ओवर डेल्टा एल ओवर एल। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो ए नीचे और स्मॉल एल ऊपर आ जाएगा। फोर्स 100 है, लेंथ टोटल 2.5 है, एरिया 10⁻5, 1.5 इंटू 10⁻3 ये डेल्टा एल है, तो आंसर आएगा 1.66 इंटू 10⁻10 पास्कल। ये कैलकुलेटर से लाजमन इसको मैच करना है कि आंसर यही आना चाहिए। एनर्जी स्टोर्ड हाफ एफ इंटू डेल्टा एल, हाफ फोर्स 100 फुट की, डेल्टा एल की वैल्यू पुट की, जो डाटा में गिवन है 7.5 इंटू 10⁻2 जूल। इट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट स्ट्रेस, पूछा गया आपसे कि स्ट्रेस कितना होगा, would cause a wire to increase in length by 0.01%। लेंथ में जो इंक्रीज हुई वो 0.01% है,
Young modulus of the wire 12 into 10 raised to power 10 Pascal. What force would produce this stress? मालूम करना है दूसरी बात कि वो फोर्स भी बताएं जो कि ये स्ट्रेस पैदा करती है. If the diameter of the wire is 0.56 mm, अगर diameter 0.56 mm, the given data, y is equal to 12 into 10 raised to power 10 Pascal, diameter 0.56 into 10 minus 3. इसको आधा करें, रेडियस निकालें, 0.28 into 10 minus 3 मीटर. Percentage increase in length 0.01%. Stress और force मालूम करनी है. Strain is given as delta L over L into 0.01 over 100. परसेंट को 1 over 100, इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें, यानी परसेंट की जगह पे 1 over 100 लिख सकते हैं. 1 into 10 raised to power minus 4. Y tensile stress over tensile strain sigma over delta L over L. इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास सिग्मा यहाँ से अगर निकालें तो ये आता है y डेल्टा L over L. अब y डेल्टा L over L इसकी वैल्यूज पुट करें. अब इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आता है 12 into 10 6 पास्कल. सिग्मा इज इक्वल टू स्ट्रेस is equal to force over area. F is equal to sigma A. Sigma into pi r square 12 into 10 6 into pi 3.14 और radius 0.28 into 10 minus 3 था, इसका स्क्वायर. आंसर आएगा 2.96 न्यूटन. फिफ्थ क्वेश्चन. Length of a steel wire is 1 meter. Length 1 meter. इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.03 into 10 minus 4 meter square. Calculate the work done in stretching the wire when a force of 100 Newton is applied within the elastic region. और young modulus of steel है 3 into 10 raised to power 11 Newton per meter square. अब लेंथ है 1 मीटर, एरिया 0.03 into 10 minus 4 meter square. वर्क डन मालूम करना है. स्ट्रेचिंग फोर्स 100 न्यूटन है. young modulus of steel y 3 into 10 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. फार्मूला अप्लाई करें. स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन F over A over delta L over L. अरेंज करने के बाद FL over A delta L. अब आपने डेल्टा L को यहाँ से अलग करना है तो वो आएगा FL over AY. इनकी वैल्यूज पुट करें and you will get the answer. Delta L is equal to 1.11 into 10 raised to power minus 4 मीटर. कैलकुलेटर से लाजमन इसको चेक करें. इसके बाद वर्क डन. W is equal to half F delta L. ये पहले भी फार्मूला यूज किया हमने. 1 over 2 into 100, 1.11 into 10 minus 4, 5.55 into 10 minus 3 joule. लास्ट क्वेश्चन है. सिलेंड्रिकल कॉपर वायर एंड सिलेंड्रिकल स्टील वायर, दो वायर्स, दोनों की लेंथ है 1.5 मीटर. कॉपर भी और स्टील भी, दोनों की लेंथ 1.5 मीटर. डायमीटर है 2 mm. are joined at one end to form a composite wire 3 meter long. दोनों को कंबाइन कर दिया गया तो ये 1.5 और 1.5 3.5 मीटर हो गया. वायर इज लोडेड, वायर पर फोर्स अप्लाई की गई हत्ता कि उसकी लंबाई 3.003 मीटर हो गई. तो अब देखें टोटल थी 3 मीटर, जो इजाफा हुआ 0.003 मीटर का इजाफा हुआ. मालूम करना है कि स्ट्रेन क्या होगा कॉपर में. मालूम करना है कि स्टील में स्ट्रेन क्या होगा और अप्लाइड फोर्स क्या होगी.
यंग मॉडुलस कॉपर का दिया हुआ है, यंग मॉडुलस स्टील का दिया हुआ है, और ये दोनों हमारे काम आएंगे। इसी से ही हम आगे चलेंगे। तो डायमीटर सबसे पहले डी 2 mm, 2 × 10⁻³ मीटर, टोटल लेंथ 3 मीटर, जो इलांगेटेड लेंथ है 3.003 है, चेंज इन लेंथ 3.003 - 3.003 मीटर। यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर गिवन है, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील ये भी गिवन है। स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन कॉपर फाइंड करना, स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन स्टील फाइंड करना, और फोर्स अप्लाइड भी फाइंड करनी है। अब आप देखें कॉपर के लिए वाई सी बराबर होगा F/A ओवर डेल्टा LC/L, क्योंकि लेंथ सेम है इसलिए यहाँ सी नहीं लिखा, तो FL/A डेल्टा सी हो जाएगा। स्टील के लिए भी ऐसे ही फार्मूला, सिर्फ सी की जगह पे एस आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। वाई सी को वाई एस पे डिवाइड कर दें, दोनों फार्मूले डिवाइड कर दें। वाई सी ओवर वाई एस जब डिवाइड किया तो डेल्टा एल एस ओवर डेल्टा एल सी बचा, दोनों की वैल्यूज पुट की 1.2 × 10^11 और वाई एस जो है 2 × 10^11, 10^11 कैंसिल हो जाएगा, 1.2 2 से कैंसिल होगा तो 0.6 आ जाएगा। तो 0.6 इंटू इधर 0.6 इक्वल टू डेल्टा एल एस ओवर डेल्टा एल सी, इट मीन डेल्टा एल एस डेल्टा एल सी इधर जाके 0.6 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बराबर आ गया 0.6 डेल्टा एल सी। डेल्टा एल सी और डेल्टा एल एस दोनों में जो इजाफा हुआ ये था 0.003। अब आप डेल्टा एल एस की जगह पे 0.6 डेल्टा एल सी पुट करेंगे, ये वैल्यू हमने अभी निकाली। डेल्टा एल सी प्लस 0.6 डेल्टा एल सी इज इक्वल टू 0.003। 1.6 delta LC is equal to 0.003. Delta LC is equal to 0.003 over 1.6, 1.875 into 10⁻³ मीटर। ये डेल्टा LC फाइंड कर लिया। अब डेल्टा LS फाइंड करना है तो उसे 0.6 से ज़रूरत देनी पड़ेगी डेल्टा LC को, 1.125 into 10⁻³। अगर स्ट्रेन निकालना है कॉपर में तो डेल्टा LC ओवर L पुट कर दें, और स्टील के लिए डेल्टा LS ओवर L पुट करें। It is given that stress in two wires will be equal. So stress का फॉर्मूला है F/A YC F/A over delta LC over L, FL over A delta LC। यहाँ से अब F निकालना है, F को अलग कर लें तो YC A delta LC over L, इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर रहेगा 471 न्यूटन। ये चैप्टर नंबर 17 एंड हो गया न्यूमेरिकल्स के साथ। अब आप न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, शॉर्ट याद करेंगे, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको अच्छे तरीके से लिखें, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।